माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Good morning, student. Myself Suren sir as a physics teacher. Today, I would like to say something about very important topic, which name is application of Gauss law. Means previous video you have studied first law of application या फिर first application of Gauss law. Today I will teach you second application of the Gauss law. Okay, so look here. Second application of Gauss law is what? तो electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet is the second application of Gauss law. This is also important for board exam. तो कैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं? यू कैन सी हियर इन फिगर infinite plane sheet. You can see which have a plus charge I have mentioned. Okay, and then one Gaussian surface is there. This is the cylindrical figures I have given you. Okay, we want to find the electric field on this Gaussian surface at the P point, A point and P dash point. Okay, we totally we want to find the electric field on Gaussian surface. Okay, if we want to find the electric field on Gaussian surface, it is necessary we should know about the electric flux. So what? Because electric flux is the relation between electric field and surface area. Okay, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गॉसियन सरफेस का यूज या गॉसियन लॉ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले हमें इसके फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। और फ्लक्स क्या होता है? यू नो, फ्लक्स इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, ओके, ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे व्हाट दिस सरफेस एरिया आई टुक इज द वन सिलेंडर आई टुक एंड देन इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन दैट लाइक एज दिस। तो यहाँ पे ये सरफेस हैव ए चार्ज, प्लस चार्ज भी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमें क्या निकालना है? सब फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सपोज दैट यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, स्मॉल q, देन on I have given that we want to find the electric field at the point P situated at the perpendicular distance R. अगर ये प्लेट है तो प्लेट ऐसे है और सिलेंडर लाइक एज दिस ऐसे है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो वहां से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। एंड फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज नोन एज सिग्मा। तो इफ वी वांट टू राइट द फार्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाउ वी कैन राइट? राइट डाउन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू total charge upon total surface area. Total charge upon total surface area. ओके, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है? Q है, ठीक है। एरिया क्या है? कैपिटल A है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो व्हाट वी कैन राइट कि सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। और अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इफ यू वांट टू राइट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. This is also capital A, this will be also capital A. Suppose that let us consider from figures you can see this cylinder is Gaussian surface, and then we want to find the electric field on P, A and P dash. You can see here this is the very minute, very small
area I took, which this value is dA, and electric field also in P point have a E vectors. So what you can say, the on P point, if we want to find the value of theta, so this value will be 0 and the P dash will be also 0. But if you find the angle between A point, the area is the dA outward and then electric field is x-axis, and then angle between both E and D equal to 90. Okay, so we want to find the electric flux on A point. So what value we can say? So first we want to find the electric flux. So electric flux on point A from the figures. From the figure जो हमने फिगर बनाया है उसकी हेल्प से we can write from the figure electric flux on curved surface equal to curved surface equal to, suppose that this value is phi1. So phi1 is what? This. So phi1 we can write integration S d E vector into dA vector. Okay, and we can write S E vector in E dA cos theta. Okay, have you written these values? Now we want to substitute these values. So phi1 equal to integration S E dA cos. अब here you can see between angle between means E vector is perpendicular to dA vector. So what we can say that theta will be 90 degree. जब ये परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनेगा? थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री. और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 इक्वल टू 0 होती है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Fs E dA इंटू 0. तो क्या हो जाएगा? ऑन ए कर्व सरफेस फ्लक्स विल बी 0 होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? phi1 इक्वल टू 0. This is question number 2. Have you written these values? Okay, good. Now we want to find the electric flux on which point? P point. कहाँ पे find out करना है? P point. You can see here कि dA and E both are in same directions. Then flux will be what? This flux, suppose that point P point have a flux phi2. क्या है? phi2. तो flux, electric flux on P point. तो क्या लिखेंगे? phi2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? सेम फार्मूला वही, इंटीग्रेशन S E वेक्टर इंटू dA वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन surface E dA cos theta. Here you can see cos theta equal to theta. एंगल यहाँ पे लिखोगे आप कि थीटा विल बी 0 डिग्री. तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होती है. तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को रखेंगे. तो phi2 इक्वल टू इंटीग्रेशन S E इंटू dA इंटू 1. ओके, लिख लिया इतना. हैव यू रिटन? अब हम आगे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. चलो phi2 इक्वल टू क्या लिखे? E को बाहर ले लो आउट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया हमने. ये क्या बचेगा? dA. अगर इसका इंटीग्रेशन dA करोगे तो क्या लिखोगे इसको? EA. मतलब phi2 इक्वल टू क्या आ गया? EA. दिस इज क्वेश्चन नंबर
same way you can see what is value of that. Similarly we can say that if we want to find the electric field on P dash, then same values we can get. What values I have got? Phi 2 in P point P. So we can write similarly, we can say similarly electric flux on P dash is क्या आएगा? फाई 3 की वैल्यू क्या आएगी? जो फाई 2 की है। ठीक है, आपको फिर से सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो फाई 3 इक्वल टू क्या आएगा? ई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई डाउट है? यू कैन आस्क। नहीं है? अब आगे हम बढ़ते हैं। वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड with help of the Gaussian surface. So you know according Gaussian surface. So first we want to find the total flux on the Gaussian surface. What is total flux? Total flux on Gaussian surface is, क्या लिखे? सपोज दैट दिस इज द फाई, तो क्या लिखेंगे? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब इसकी वैल्यूज आपको पता है, लिख सकते हो आप इसकी वैल्यूज को। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3 4। तो फाई 1 की वैल्यू क्या है? बोलिए। 0 है। और फाई 2 की वैल्यू क्या है? ई ए है। क्या है? ई ए। और फाई 3 की वैल्यू क्या है? वो भी ई ए है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू 2 ई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका निकालना है? इस गॉसियन सरफेस का। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आई हैव गॉट। टोटल फ्लक्स क्या है हमें पता चल गया है। अब हमने निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, तो किसका यूज करेंगे हम? वी विल यूज द गॉसियन लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ का फार्मूला बताना है आप लोगों को। थिंक अबाउट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या है? कौन बताएगा? फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये होता है टोटल चार्ज, मतलब सिग्मा लिखो या डेल्टा क्यू लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यूज, हमें इसकी वैल्यूज पता है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू 2 ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। जब ये इसकी वैल्यूज है और ये इसके बराबर है, तो व्हाट वी कैन से कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ वी कैन राइट 2 ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है? Q equal to sigma A. So here you will substitute value of Q. So what we can write? 2EA equal to sigma A by epsilon naught. यहाँ पे A से कैंसिल हो गया, तो अपने को क्या मिलेगा? E equal to sigma by epsilon 2 epsilon naught। तो ये वैल्यूज, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 5। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सिंगल प्लेन शीट। इफ वी विल राइट, इफ यू वांट टू राइट दिस वैल्यूज इन द वेक्टर फॉर्म, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटीज, वी कैन राइट इन द वेक्टर फॉर्म। तो हाउ वी कैन राइट? एनीवन कैन से? वेक्टर लगाना तो क्या करना पड़ेगा हमें? यूनिट वेक्टर लगाना कंपलसरी है। तो हैव यू रिटन दिस वैल्यूज? ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉन एन यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6। okay, suppose that let us consider we have a not a single seat, we have a 2 seats like as this. If we want to find the electric flux on the different point, electric field on different point, so how we can get the values of this? Listen carefully and see. Suppose that I have a, you write down, suppose that what you took, you will write. Here I took 2 plates, 2 seats I took, seat 1, seat 2. Suppose that this is the seat 1, this is the seat 2, and then density is sigma 1 and the other is the sigma 2. Here we can say sigma 1 is greater than sigma 2. Sigma 1, sigma 2 is, what is value, what is sigma 1 and sigma 2? Sigma 1 is the surface charge density of seat 1 and sigma 2 is the surface charge density of seat 2. Okay, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. Suppose that I took 3 point on that. This point is P, this point is Q, this point is R. Okay, you see here electric field इस डायरेक्शन में भी होगी, इसकी इस डायरेक्शन में भी, इसके लिए भी इधर डायरेक्शन में होगी, इधर डायरेक्शन में. तो इसके लिए अगर हम कहें सेकंड शिफ्ट के लिए, ये क्या होगा, E2 वेक्टर होगा, यहाँ पे भी E2 वेक्टर होगा, ये E1 वेक्टर होगा और ये E2 वेक्टर E1 वेक्टर होगा. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होगी, उसकी भी होगी. अगर हम बात करें पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे 2 वेक्टर लगेंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक E1 होगी और एक E2. तो E1 का डायरेक्शन ये होगा, E2 का डायरेक्शन ऐसा होगा. ठीक है, ये पॉइंट R है, ध्यान से समझिए. लेकिन आप यहाँ पे Q पॉइंट पे अगर देखते हैं तो दोनों के डायरेक्शन E1 E2 की डायरेक्शन सेम होंगी. कहने का मतलब ये E1 भी है और ये E2 भी है. कहने का मतलब ये हम लिख सकते हैं E1 वेक्टर और इधर डायरेक्शन में क्या है, E2 भी है. इस साइड में देखिए तभी यही होगा. यहाँ पे E1 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और E2 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में. देख सकते हो, E2 वेक्टर जहां तक जाएगी, जितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना वहां तक जाएगा. अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. अगर R पे लिखे, यहाँ पे वैल्यू निकालें तो E वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. कहने का मतलब समेशन ही तो हमें करना है. बट यू कैन सी हियर कि E1 एंड E2 इज अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है. और यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे E वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. टोटल हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें आईडी करना है. बट अगर सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस होगा, बट डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा. तो आप देख सकते हो फॉर P पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो फॉर P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E वेक्टर इक्वल टू, क्या जानते हैं हम इसके बारे में, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. किसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू क्या आएगी,
जबकि हमें पता है ना E1 इक्वल टू क्या होता है, E1 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये फार्मूला है सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन एंड सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये तो किसके लिए, पी पॉइंट के लिए रहा। बट सेम वे इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर क्यू, तो फॉर क्यू के लिए क्या होगा, पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। सेम वैल्यूज वी कैन गेट फील्ड, तो ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉन प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉन। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कहने मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट दिस वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू सेम थी। बट यू कैन सी हियर फॉर आर के लिए, तो आर के लिए वैल्यू क्या होगी, हैव यू रिटन दिस वैल्यूज, यस। चलो फिर रब करते हैं हम। अब आगे हम लिखते हैं आर के लिए वैल्यूज। तो आर इक्वल टू फॉर आर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब इसकी वैल्यूज आप देख सकते हो, डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से अगर E1 पॉजिटिव है तो E2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस तो करेंगे लेकिन इसके डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, E1 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, किया तो प्लस ही है बट क्या हुआ, वो डायरेक्शन उसका रिवर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस E2 वेक्टर। ओके, अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, यू नो E1 इक्वल टू व्हाट, ρ1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉन एंड दूसरा ρ2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉन। अब क्या हो जाएगा ये, ρ1 माइनस ρ2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉन। तो आप देख सकते हो कि अगर दो प्लेटें हमारे पास हैं और आर पॉइंट पे अगर हम वैल्यूज निकाल रहे हैं तो कर तो एडिशन रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से इनका जो डिफरेंस आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, S2 पे है, S1 पे है, तो वो सबट्रैक्ट होगी। ओके, तो इन दिस वे वी कैन राइट ऑन आर पॉइंट वी कैन गेट द डिफरेंट वैल्यूज लाइक एस, पी एंड क्यू। तो ये वैल्यूज है आपकी between of the two plane sheet, uniform plane sheet. If any points are there, so we will use this formula. Okay, have you understood? Write down. Okay, दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।